Namaskar, sir, to all of you. A warm welcome to you all to this national level orientation program in Agriculture Infrastructure Fund for farmers producer organizations. You may be aware about that nearly 85% of the farmers are smallholders with less than 2 acres of land and having less infrastructure facilities at farm gate level and resulting in wastage of their yield. Hence, the role of infrastructure is very crucial for agriculture development, especially for post-harvest stage for the farmers. In view of this, Honorable Finance Minister announced on 15th May 2020 about 1 lakh crore for agri-infrastructure funds for the farmers of primary agriculture cooperative societies, farmers producer organizations, entrepreneurs and startups and so on. Accordingly, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has developed guidelines for this agri-infrastructure fund and manages conducting orientation programs for different stakeholders like agri-entrepreneurs, agri-startups, FPOs on this agri-infrastructure fund. Today, we are conducting for FPOs. The main objective of today's program is to orient participants about salient features of agriculture infrastructure fund. What are the areas of preparation of DPR and how to make maximum benefit by farmers producer organizations for this infrastructure development also. Now I am very much privileged to welcome our Director General Dr. B. Chandrasekhara Saab, who is a leading professional in the field of agriculture with 31 years of experience and expertise in the areas of agriculture extension management, agri-entrepreneurship development, agri-marketing, and public-private partnership, and so on. So many other areas. During these three decades of his service, he headed 3 premier agriculture institutions in India, which were Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. He served as a Director General, National Institute of Plant Health Management, that is NIPHM, and Director General of Chaudhary Charan Singh National Institute of Agriculture Marketing, located in Jaipur, and is currently serving as a Director General of National Institute of Agriculture Extension Management in Hyderabad. And he served as Chief Executive in the many institutions, and he lead very important schemes, programs, and policy interventions to strengthen agriculture extension system and strengthen capacity building and agriculture marketing for the benefit of the farmers in India. He has served as a director of several centers, research projects, and international programs in Manage also. And as a Director General in Manage, he established several new initiatives. One among them is FPO Academy, that's the Farmers Producer Organizations Academy. This academy will work with the different stakeholders covering central and state government departments, universities, NGOs, corporates, public-private partnership institutions, and through public-private partnership mode, mainly for capacity building of different stakeholders. The academy will try to address issues related to the capacity building, formulation and registration of FPOs, legal issues and issues related to the sustainability of farmers organizations and other areas of farmers organizations also. And welcome you, sir, for this national level orientation program. And again, on behalf of Manage, now I'd like to extend a warm welcome to Sri K.R. Meena sir, Director CPC, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. And basically he's from Indian Ordnance Factory Service, that is IOFS, with 18 years of experience. He's basically he's electronic engineer, and presently he is on deputation to Minister of Agriculture and Farmers Welfare as director, and he is instrumental in preparation of these guidelines for agriculture infrastructure fund also. Welcome you, sir. Welcome you, Meena Saab, for this national level orientation program. Now, it's my pleasure to request our Director General, Manage, Dr. P. Chandrasekhara Saab, to preside over this program and give us an opening remarks for this program, please, sir. Over to Dr. Chandrasekhara Saab. Yeah, thank you, Dr. Renaka. Good morning to all of you. On behalf of Manage family, I would like to extend a warm welcome to every one of you. ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का बारे में हम ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कर रहे हैं. देश का कोने-कोने से डिफरेंट स्टेट्स
फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का ज़रूरत क्या है? अभी हम तो फूड सफिशिएंट नेशन है, हमारा पास तो एडिक्वेट फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, बट हमको चाहिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि एटलीस्ट 14% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड, सो वी आर मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और एक बड़ा बात है इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। So the recent, time survey says per monthly income of a farmer's family is 10,329 rupees. That means per day it is around 344 rupees. When the income is very less, naturally our farmers they try to shift from agriculture to non-agriculture. So that is, very important development which is taking place in every villages. Therefore, we have to ensure income security. For this purpose, if we see the basic problem, farmer is individual. He cannot, stand against a existing system, whether it is a production system, input supply system, processing system, marketing system, export system. Alone, he cannot export. Half an acre, 1 acre we cannot make him to export his produce, but you just imagine same 500,000 farmers, they will come together, they will purchase all their inputs directly from agribusiness companies. You have quality, you will not get fake material, and also you will get a better price because you are cutting the middleman. 15 to 20% certainly you can save by collectively bargaining and purchasing all the inputs from the agribusiness companies. That is one advantage. Another thing, you cannot, take your half an acre, 1 acre, छोटा छोटा लैंड पीसेस है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, इसमें आप हम प्रोडक्शन करके मार्केट को हम नहीं कर सकता है अकेला। सो हम 500,000 फार्मर्स का एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, हम इकट्ठा करके इसको प्रॉपरली ग्रेडिंग कर सकता है, सॉर्टिंग कर सकता है, पैकिंग कर सकता है, अच्छी तरह से ड्राइंग कर सकता है, अच्छी क्वालिटी मटेरियल हम मार्केट में डायरेक्टली बेच सकता है। इसका फायदा क्या होगा? 50 to 60% प्रॉफिट इंटरमीडिएट्स को जाता है। ये सारा 50 to 60% प्रॉफिट हमारा फार्मर्स का हाथ में आ जाएगा। सो फार्मर्स हम इकट्ठा आने से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का रूप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। So whether it is for marketing, whether it is for processing, whether it is for export, whether it is for input purchase, whether it is for accessing the input market and taking greater benefit, farmers producers organization become prerequisite. Therefore, Government of India launched a program for promoting 10,000 farmers producers organizations. So आप कोऑपरेटिव हो, कंपनीज एक्ट में हो, आप रजिस्टर कर सकता है और ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन आप फ्लोट कर सकता है। एक बार इकट्ठा आने के बाद see there are several benefits are there, we can link it to extension, good extension, we can link to good inputs, we can link to good credit. Banks they trust the group more than individual, so we can have access to agriculture infrastructure. So when you want to access market, for example, आप कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी डायरेक्टली आप मार्केटिंग करने के लिए कोशिश करेगा। मार्केट में तो आपको मार्केट मिलेगा, अभी तो दूसरा वाला तो मार्केटिंग कर रहा है, आपको भी मिलेगा, बट इसका कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है, हम इसको प्रॉपरली ड्राई करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग और इसको स्टोर करना पड़ेगा। देखिए प्रोडक्शन तो एक सीजन में होता है, बट कंजम्पशन तो साल भर होता है। सो इसको स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब कुछ करने के लिए अकेला फार्मर्स के अलावा ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम ये अभी चल रहा है, आपका इसका सदुपयोग करिए। किसान इकट्ठा होने के बाद इसका मन में क्वेश्चन आता है,
व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना है, पैसा चाहिए आपको, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना है? प्राइमरी प्रोसेसिंग ये करना है, वेयर हाउस करना है, कोल्ड स्टोरेज करना है, कुछ प्रोडक्शन यूनिट करना है, कस्टम हायरिंग करना है। इसके लिए कुछ पैसा तो चाहिए। ये पैसा तो इंडिविजुअल फार्मर से मैनेज करने में मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया launched another very ambitious scheme called Agriculture Infrastructure Fund. So I would like to thank all the ministry team, especially Mr. KC Meena, director, and I'm grateful to you, sir, for sparing your valuable time, and Ashwini Mittalji and his entire team. They are here not only today morning, even for afternoon also we have one more meeting, especially for agri startups. So for your kind information, yesterday we started a national conference on challenges for first generation agripreneurs and agri startup. In fact, conference is going on today also. It is going on. It is an online conference. We are just trying to address. So yesterday again, we launched 14 agri startups in the state of Telangana. So all the, even the Joint Secretary RKBY was also there. Secretary Agriculture Telangana was also there. So all these people are asking only one thing: where we can get some support from government for establishing infrastructure, for establishing, quality services to the consumers. The one window, single window solution is Agri Infrastructure Fund. It is a great scheme. Up to 2 crore आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट है, कुछ इसमें अप्स एंड डाउन होता है बिजनेस में, कुछ होने से इसका थोड़ा सपोर्ट भी होता है, और बैंकर्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है क्रेडिट गारंटी सपोर्ट होने से। इसका डिटेल प्रेजेंटेशन है, आप वो जस्ट सुनिए इसको, आपका क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, और प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको क्या लैंग्वेज है, हिंदी हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, हम सब लोगों को सभी लैंग्वेज मालूम है, मैनेज में सारा लोग है, कन्नड़ा का लोग है, तेलुगु है, मलयालम है, और हिंदी है, इंग्लिश है। आप इसका बारे में यू डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेजेस, आप जस्ट सुनिए और आपका क्वेश्चन नोट डाउन करिए, and once the presentation is over, you ask question in any language, our people will help, and you just try to get the solution. Even after this conference, if you want any additional information, please contact manage FPO Academy, and we will be very happy to serve you. I will not take more time because ministry team is here, their time is very valuable. And again, I would like to thank every one of you for assembling here to learn more about Agri Infrastructure Fund, and entire ministry team, and all my colleagues. Dr. Renuka is there, Dr. Ashwini, and the entire team is here. So I would like to thank all the people and request ministry team to initiate the presentation. Thank you so much, sir, for your excellent information, particularly regarding this post-harvest management and value addition, marketing, and importance of Agri Infrastructure Fund, and how these FPOs can be going to benefit about this infrastructure fund. Thank you, sir. Thank you so much. And now I'd like to request our K.R. Mena, sir, director, and his team from Minister of Agriculture, kindly make a presentation about this Agri Infrastructure Fund scheme, sir, to orient the participants, because they are all from FPOs, and they are all going to get benefit about this presentation. And after completion of this presentation, we can have open for discussion. For participants, kindly note down your issues and points, whatever is required, whatever to be clarified. And finally, we can have at length discussions also. Kindly clarify your doubts. Thank you, sir. Meena sir. Over to Meena sir. Good morning to all. Respected Dr. P. Chandrasekhar, DG Manage, and respected all the members of Team Manage, and my dear participants. First of all, I would like to convey my sincere thanks on behalf of the Department of Agriculture and Farmer Welfare for organizing a national level orientation program on AIF
to sensitize all the stakeholders, including members of FPOs. As doctors have told, there is a huge gap between existing infrastructure and required infrastructure in agriculture sector. And there is a non-availability of the financing for newly startups and agri-entrepreneurs. And all you are aware that there is a 15 to 20% losses in post-harvest activities. So to keep in mind all the such issues, mainly these three issues, the Government of India launched a scheme, as all you are aware, Agri-Infra Fund. So first of all, I would like to give a brief introduction about AIF. Then my team will give the detailed presentation. The main features of the scheme, as the doctors have told, that it is a 1 lakh crore financing facility will be available for all the beneficiaries. The main beneficiaries are, there is a wide range of beneficiaries, including farmers, FPOs, cooperative sectors, agri startups, agri entrepreneurs, and self-help groups. APMCs also can avail this facility. State and central agencies in the country also can take the benefit of Agri-Infra Fund. There are the two main features that there is a 3% interest subvention available on the in this Agri-Infra Fund up to 2 crore financing amount. And most of the all private sector and all public sector bank have been signed a MOU with the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Farmer Welfare for lending under this scheme. So there is a cap that bank they will not charge more than 9%. It is a existing MCLR plus 1%, but at upper cap also there not more than 9%. That credit guarantee facility also available for the eligible borrowers under the CGTMSE scheme. So FPOs, for especially FPOs, also credit guarantee facility available up to through SFAC. There is a scheme in that Ministry of Agriculture set up by a different division and administered and monitored by SFAC. There is a formation of 10,000 FPOs. Under this scheme, there is a credit guarantee available for FPOs. So that one beauty of this Agri-Infra Fund is there that Agri-Infra Fund scheme can be converged with other state as well as other central government schemes where the capital subsidies and other interest subventions are also available. Under this feature that we provided the facility to FPOs for providing that credit guarantee facility through SFAC. Under this scheme, mainly three types of projects are covered. First one is post-harvest activities, including warehouses, storage infrastructure, then packing house, cleaning and sorting, grading facilities also can set up under this scheme. Then to create community assets, including smart and precision farming. Then input production units also can set up under this scheme. Most of the primary activities are also covered under this scheme. So this is my brief introduction about the scheme. Now I will request my team to give a detailed presentation. After that, we will be available for your question answer session. My name is Amresh Day, and the presentation both is in Hindi and English. So this is a brief about the scheme, where we'll be discussing about main features of the scheme and how this application being processed, which are eligible under the scheme. And in the end, एक बार मैं आप सभी लोगों को जो वेबसाइट है, पोर्टल है एग्री इंफ्रा फंड का, उस पोर्टल के थ्रू में एक बार दिखाऊंगा आपको लाइव
how to go to the portal and how to see different features on the portal, how to apply, and all those details. As it has already been discussed earlier during this VC, that there are several gaps in agriculture ecosystem of the country, such as there is huge post-harvest loss due to higher gap in agricultural infrastructure. As per a study of CIFHET, there is around 15% of post-harvest loss क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप है. एंड सेकेंड जो हमारे किसान हैं वो काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स के ऊपर, जैसे बिचौलिया जिसको बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं, उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है अपने मार्केटिंग को, सेलिंग को लेके. एंड जिसके वजह से अराउंड 30 to 50% जो प्राइस रियलाइजेशन है फार्मर्स के लेवल में, विच इज़ वेरी पुअर इन आवर कंट्री. एंड थर्ड इज देयर इज लैक ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फंडिंग. बैंकिंग फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए काफ़ी डेवलप नहीं है काफ़ी हद तक, स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. एंड फोर्थ इज बहुत सारे अभी हमारे देश में जो पोटेंशियल एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है अभी फ्लरिश हो रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए भी हमें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी. Looking into this gap and address this gap, this scheme has been launched under Atmanirbhar Bharat package. So basically it was approved by cabinet in the May 2020, which was subsequently approved by the cabinet in 8th of July 2020, and officially it was launched by Honorable Prime Minister 9th of August 2020, and recently after completion of its 1 year, some modifications were made, जो आप देख पा रहे हैं स्कीम पे. जुलाई में फिर से इसमें हमारे सजेशन के बेसिस पे कि स्कीम में क्या क्या गैप है और किस तरह के और फार्मर्स की डिमांड फुलफिल किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट some modifications were made on 8th of July 2021. As मीना सर has already highlighted, स्कीम में बेसिकली 8 मेन फीचर्स है जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो. तो पहला जो फीचर्स है दैट इज इंटरेस्ट सबवेंशन, एंड सेकेंड फीचर्स इज क्रेडिट गारंटी. तो इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें जो फैसिलिटी मिलता है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन फैसिलिटी मिलता है, लेकिन 3% सिर्फ आप एक्सक्लूसिवली 3% मत समझिए. बेसिकली व्हाट हैपन इज दोज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हु आर साइनिंग MOU विथ मिनिस्ट्री, they are signing this MOU with the ministry, 2 basic terms and condition. One, that they cannot charge beyond 9%. This interest rate is capped as 9%. If normal farmer go for a loan, normal interest rate is somewhere around 10 to 11%. But once they included in Agri Infra Fund, they cannot charge beyond 9%. On the top of it, there is a subvention of 3% from the side of ministry. So effective rate of interest won't be beyond 6%. And it is linked to MCLR, as it is discussed. So as per current rate of MCLR plus 100 basis point if you consider, so SBI's interest rate is effective interest rate after this subvention is somewhere around 5%, which is quite an attractive rate of interest. So second benefit is credit guarantee. As you can see, क्रेडिट गारंटी में इसमें क्या है कि जब कोई फार्मर लोन लेता है, कोई भी एग्री एंटरप्रेन्योर लोन लेते हैं, तो उसमें उनके 2 करोड़ तक का कोई भी कोलैटरल देना की जरूरत नहीं होता. एंड इसमें जो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट है मिनिस्ट्री की तरफ से मिल रहा है. As such, ministry doesn't directly provide any credit guarantee support to each of the beneficiary. What happened is when one beneficiary apply for the loan and he is not able to provide collateral, then CGTMSE, there is another organization, CGTMSE cover this credit guarantee facility through a fee being charged by CGTMSE to cover under credit guarantee. This fee is being reimbursed by the ministry. जो CGTMSE की फी है वो फी मिनिस्ट्री बॉन्ड करता है. एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मिनिस्ट्री की तरफ से जो फी है हम लोग बैंक के साथ सेटल कर लेते हैं. ये जो फी है CGTMSE का क्रेडिट गारंटी का फी है. लेकिन अगर FPO इसमें आज बहुत सारे FPO हमसे जुड़े हैं, FPO अगर क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी लेना चाहे तो FPO के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक दूसरा स्कीम है, दैट इज कॉल्ड FPO प्रमोशन फंड स्कीम, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है. एक तो SFAC है एंड दूसरा एक नाबार्ड का सब्सिडियरी है, दैट इज नाब संरक्षण. तो अभी तक नाब संरक्षण फॉर्मुलेशन स्टेज पे है, अभी तक वो ऑपरेशनल स्टेज पे नहीं है. तो जो SFAC है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है SFAC,
तो उसके तहत 1 करोड़ तक का कोलैटरल फैसिलिटी, जो बगैर क्रेडिट गारंटी जो फैसिलिटी है, वो एसएफएसी से मिल रहा है। एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी का फैसिलिटी एग्री इंफ्रा फंड से नहीं मिलता, वो एसएफएसी से मिलता है, बताएंगे। एंड इसमें हर तरह के बेनिफिशियरी, हर तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेंट इसका फायदा ले सकते हैं। एज यू कैन सी, इट कैन बी फार्मर, इट कैन बी एफपीओ, इट कैन बी पैक्स, इट कैन बी एग्री एंटरप्रेन्योर, इट कैन बी प्राइवेट प्लेयर्स and all other SHG, everybody can take the benefit. Only as of now, this state and central government cannot directly take the benefit. Other than that, all kind of applicant can take the benefit of this scheme, as you can see, including APMCs and federation also. ये जो क्रेडिट गारंटी की फैसिलिटी है एंड इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी है, ये जो बेनिफिट है आपको 7 साल तक मिलेगी। चाहे आपका लोन इससे ज़्यादा अवधि तक हो सकता है, ज़्यादा टाइम टेन्योर के लिए हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, लेकिन स्कीम का जो बेनिफिट है इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर अप टू 7 years. And same in case this 2 crore thing that I shared earlier, there is a limit of 2 crore loan. The loan can be of higher amount. Loan इससे 2 crore से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन एग्री इंफ्रा फंड का जो बेनिफिट है वो 2 crore तक का ही जो इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी की फैसिलिटी उसी के ऊपर मिलेगा। तो इसमें हम लोगों ने जितने भी मेजर कमर्शियल बैंक है, आपके कोऑपरेटिव बैंक है एंड एनबीएफसीज है, सभी के साथ हमने एमओयू साइन किया है। तो आप जब पोर्टल पे जाएंगे, यू कैन सी कौन से सारे बैंक है, बहुत सारे बैंक है जो हमारे, ऑलमोस्ट सभी बैंक हमारे साथ एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री के साथ। और इस स्कीम का एक फायदा ये है, द मेजर बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज दिस कैन बी टॉप अप विथ एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम। इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। इट कैन बी ए कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन। इट कैन बी कन्वर्ट विथ एनी अदर स्कीम। दिस इज जस्ट ए टॉप अप स्कीम। फॉर एन एग्जाम्पल, राजस्थान स्टेट इज रनिंग ए स्कीम इन द सेम लाइन, जिसमें सेम सिमिलर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो इसमें एलिजिबल होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, जिसमें राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग 5% ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये स्कीम जब इसके साथ कन्वर्ट हो जाता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 1% रह जाता है एंटरप्रेन्योर के लिए, विच इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जुलाई में, दिस जुलाई में कुछ स्कीम में परिवर्तन लाया गया है, लुकिंग एट द डिमांड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जैसे कि पहले इस स्कीम में एपीएमसी, स्टेट एजेंसीज एंड नेशनल फेडरेशन, एफपीओ फेडरेशन एक्सेट्रा एलिजिबल नहीं थे। अभी ये सब इनको एलिजिबल कर दिया गया है। अगर कोई एफपीओ फेडरेशन है, एसएचजी फेडरेशन है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, इंक्लूडिंग एपीएमसीज ऑल्सो कैन अप्लाई, स्टेट एजेंसी सच एज स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और नेशनल एजेंसीज ऑल्सो कैन अप्लाई। पहले स्कीम में ऐसा था कि एक एंटिटी एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड। One entity can apply for 25 different project. Only here the only term here is that condition is that each of this project has to be located in different village. एक applicant, एक जो entity है वो 25 application submit कर सकते हैं। Only thing is that इसमें जो 25 उनके प्रोजेक्ट होंगे वो हर एक डिफरेंट एलजीडी कोड में होना चाहिए। एलजीडी कोड मतलब क्या? लोकल गवर्नेंस कोड होता है, जो एक्चुअली में एक विलेज होता है। हर विलेज के लिए एक एलजीडी कोड होता है। तो हर एक प्रोजेक्ट अगर अलग अलग एलजीडी कोड में होगा तो ये अप्रूव हो सकता है। एपीएमसी अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। एपीएमसी के लिए कोई लिमिट नहीं है। एपीएमसी अपने ऑपरेशनल एरिया के अंदर चाहे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ये स्कीम जो था पहले 2024 तक था, अभी इसको बढ़ा के 2025-26 तक कर दिया गया है। तो 25-26 तक की स्कीम में आपका जो डिसबर्समेंट है ये चलता रहेगा। सो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। इस स्कीम में बेसिकली कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है। ये क्यों लिमिट लगाया गया? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों ना सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एलिजिबल है? क्योंकि जब 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, इसमें 3 स्कीम का साइमल्टेनियसली अनाउंसमेंट हुआ। वन इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, थर्ड इज पीएमएफएमई, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड फॉर्मलाइजेशन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ये तीनों मिनिस्ट्री का अलग अलग स्कीम है। जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करेंगे, इसमें इन 3 तरह के जो कंपोनेंट है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अप टू प्राइमरी प्रोसेसिंग।
तक एलिजिबल है। इसके आगे जो एक्टिविटी होगा फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कवर करता है। अगर आपकी मिल्क रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो आप एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी सिमिलर फीचर्स हैं। एंड अगर फिशरी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए तो देयर इज अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिशरी मिनिस्ट्री का है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो हियर द स्कीम इज लिमिटेड अप टू प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो इसमें कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स में क्या है कि कोई अगर कम्युनिटी है, कोई एक फार्मर्स ग्रुप है, इधर एफपीओ है, एसएचजी है, जेएलजी है, ये अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहे, या तो फिर कोई अगर इंडिविजुअल भी है, अगर कोई अपना नर्सरी बनाना चाह रहे हैं, या फिर सीड प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाह रहे हैं, या कस्टम हायरिंग सेंटर बनाना चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअल अगर ये मल्टीपल फार्मर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, उसको भी हम लोग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट में कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट एंड प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे इसमें आप ड्रोन बेस्ड फार्मिंग के लिए बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं, एंड इनपुट प्रोडक्शन जैसे ही मैंने आपको बोला टिश्यू कल्चर यूनिट हो सकता है, नर्सरीज हो सकते हैं, सीड प्रोसेसिंग यूनिट हो सकते हैं, एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई अगर ग्रुप है, वो लोग अगर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे रिफर व्हीकल हो गया, या तो फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो गए, और पैक हाउस बना के फिर वहां से आप सप्लाई करना चाहते हैं सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के लिए, दे आर ऑल एलिजिबल। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि पैक हाउस है, आपके क्लीनिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके आप उसको स्टोरेज करके फिर आपको सप्लाई चेन के थ्रू में ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी एलिजिबल है, इंक्लूडिंग इसमें सोलर पैनल भी हम लोगों ने रिसेंटली इसमें एलिजिबल कराया है। कोई भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक कोल्ड स्टोरेज है सपोज, नाउ दे वांट टू चेंज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्स टू सोलर पैनल, थ्रू सोलर पैनल, so that is also eligible under the scheme. And under primary processing, rice and dal mill, flour mill, oil mill without refining facility, spices grinding, and jaggery and sugar processing etc. is also eligible under the scheme. So जैसे कि आपको मैंने इन्फॉर्म किया इससे पहले कि ये स्कीम किसी भी स्कीम के साथ कन्वर्ज हो सकता है। इसमें वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट सम ऑफ द मेजर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज यू कैन सी, there is a scheme of mission for integrated development of horticulture by horticulture department, MIDH। इसमें इस स्कीम में बहुत तरह के सब्सिडी है। ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, पैक हाउस की, प्राइमरी प्रोसेसिंग की, स्टोरेज की, कोल्ड स्टोरेज की, इसमें 35 to 50% तक का कैपिटल सब्सिडी है। उसके बाद में फिर अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आपको ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है, it is getting quite effective at the level of whether it is FPO or at the level of individual farmers or agri entrepreneurs. Similarly, as I said, there is a scheme of Ministry of Food Processing, that is PMFME, PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises. So here also there is a subsidy of around 35%. For farm mechanization, there is a scheme, submission on agriculture mechanization, जिसमें you can see there is a capital subsidy of around 40%, जिसमें 40% तक के आपको capital subsidy मिलता है. This also can be converted. There is several scheme running at each state government level. RKY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. There are many component of राष्ट्रीय कृषि विकास योजना in each of the state. That benefit also you can take along with AIF. देन कृषि सिंचाई योजना है, इसमें ऑपरेशन ग्रीन है, जिसमें बेसिकली टमाटो, पोटैटो एंड अनियन को लेके स्कीम्स है. एंड पीएम कुसुम जिसमें आप सोलर पंपिंग सिस्टम बैठा सकते हैं, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो इस स्कीम का बेनिफिट लेने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है. एज यू कैन सी द वेबसाइट फॉर अप्लाइंग इज agriinfra.dac.gov.in, as you can see. So इसमें जो है हम लोगों ने जो बैंक के साथ MOU साइन किया है, आपको जो मैंने बताया कि वो 9% से ज़्यादा कैप में 9% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. दैट इज़ वन टर्म. अनदर कंडीशन इज दैट दे हैव टू प्रोसेस दिस एप्लीकेशन विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग ऑन द पोर्टल. तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो एप्लीकेंट है उनको सबसे पहले पोर्टल में जाना पड़ता है, जो ऊपर हमने हाईलाइट किया agriinfra.dac.gov.in. इसमें जाके आपको बेनिफिशियरी टैब पे क्लिक करके यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. आपको रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले. उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड नंबर देके रजिस्टर करना पड़ता है. एक बार आप रजिस्टर हो जाए तो आपके मोबाइल नंबर जो आप देंगे उस नंबर पे आपका OTP आ जाएगा. वंस यू रजिस्टर यू विल रिसीव एन OTP ऑन द मोबाइल नंबर. With that you can log in using your user ID and password.
एंड वंस यू लॉग इन देन आपको एक स्क्रीन दिखेगा लोन एप्लीकेशन. You can see the screen of loan application. In loan application, you have to give some a few basic details like कौन से project कर रहे हैं, what is your project type, and what is your name of your organization, and along with that you have to upload your DPR. एक DPR की कॉपी है जिसका PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ता है. आप अगर पोर्टल में जाएंगे, अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर पाता तो शायद मैं आपको दिखा पाता था, आज एक लाइव व्यू दिखा पाता कि पोर्टल में कहाँ पर किस तरह का मटेरियल है, बट समहाउ ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वो हमें दिखा नहीं पा रहा हूँ. लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे. आप अगर पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे पोर्टल पे आपको रिसोर्सेज करके एक टैब दिखेगा. यू कैन सी ए टैब रिसोर्सेज. ऑन रिसोर्सेज इफ यू सिलेक्ट DPR, आपको सारे 15-20 तरह के DPR अपलोड हुए हैं उसमें DPR के PDF फॉर्मेट है, और DPR हर एक DPR जो है, सपोज फॉर एन एग्जांपल बनाना राइपनिंग चैम्बर के DPR है, वो DPR दो फॉर्म में है. आपको कैपिटल सब्सिडी के साथ वाला भी DPR मिलेगा, उसमें कैपिटल सब्सिडी के बिना वाला भी DPR मिलेगा वहाँ पे. उसके साथ में हम लोगों ने सारे जो DPR हम लोगों ने बनाए जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन हुए हैं, उसके सारे एक्सेल शीट भी अपलोड किए हैं पोर्टल में. आप पोर्टल पे जाएंगे रिसोर्सेज पे, यू कैन सी द ईच ऑफ द एक्सेल शीट फॉर ईच ऑफ द DPR, और हर एक DPR के आपको मिल जाएंगे विद सब्सिडी एंड विदाउट सब्सिडी वाला. आपको सिंपली उसमें आपका मैन पावर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैन पावर नंबर चेंज कर सकते हैं, एंड कैपेसिटी चेंज करना चाहते हैं, कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं. उसके बाद से सारा कैलकुलेशन अपने आप चेंज हो जाएंगे, और वो टेबल को लेके आपको सिंपली जो PDF फॉर्मेट है उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना है. DPR टेम्पलेट अवेलेबल है, सैम्पल DPR अवेलेबल है, 20 सैम्पल DPR अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के. वो उसमें कोल्ड स्टोरेज है, बनाना राइपनिंग चैम्बर है, एंड कस्टम हायरिंग सेंटर है. बहुत तरह के 20 DPR के सैम्पल DPR अवेलेबल है, उनके एक्सेल शीट्स अवेलेबल है. और सारे DPR के दो फॉर्मेट है, विद कैपिटल सब्सिडी, विदाउट कैपिटल सब्सिडी. अच्छा, तो आप जब पोर्टल पे लोन एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं, अपने बेसिक डिटेल सबमिट करते हैं, अपना DPR अपलोड करते हैं, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द बैंक टू विच यू वांट टू अप्लाई द लोन. आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना पड़ता है. ये अगर अच्छा होगा अगर आपने बैंक के साथ पहले टाई अप कर लिया, बैंक से आपने डिस्कस कर लिया कि बैंक राजी है आपको सैंक्शन करने के लिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बैंक आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो बैंक फिर फर्दर आगे आपके एप्लीकेशन को पोर्टल पे रिजेक्ट ना करे. तो सपोज यू वांट टू अप्लाई टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू कैन सिलेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद से फिर ब्रांच ID भी पूछेंगे आपको, आप ब्रांच भी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन डिटेल भर के द मोमेंट यू सबमिट दिस एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री के लेवल में हम देख पाएंगे उस एप्लीकेशन को, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया एट द लेवल ऑफ मिनिस्ट्री, यू कैन सी दैट एप्लीकेशन द मोमेंट यू शेयर. हम यहाँ पे बेसिकली मिनिस्ट्री लेवल हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं. एक, जो एक्टिविटी आपने अप्लाई किया, जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया किस किस तरह की एक्टिविटी इसमें एलिजिबल है, वो एक्टिविटी एलिजिबल है कि नहीं जिस एक्टिविटी के लिए आपने अप्लाई किया है. एंड सेकेंड, हम देखते हैं कि इसमें एक कंडीशन ये है कि जो प्रमोटर है, कोई भी एप्लीकेंट है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मिनिमम 10% जो कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से आना चाहिए. मिनिमम 10% की प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी, अलॉन्ग विथ मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द सब्सिडी एंड ऑल, मिनिमम 10% आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. तो वो 10% कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, दैट सेकेंड थिंग दैट वी चेक. एंड थर्ड थिंग दैट वी चेक इज एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में एक DPR अपलोडेड है कि नहीं. बेसिकली वहाँ पे आपने कैश फ्लो वगैरह के डिटेल्स भर रखे हैं कि नहीं, दैट वी चेक. So at ministry level, once we check these 3 things, and within 24 hours, 24 घंटे से 48 hours के बीच में हम उसको पोर्टल में वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन सही है. हम जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं, हमें कुछ बैंक को भेजना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली सिस्टम से वो बैंक के जो क्रेडेंशियल, बैंक के जो लॉगिन ID जनरेट है, बैंक जब लॉगिन करेंगे ब्रांच के लेवल तक, जिस बैंक ने अपने ब्रांच के लेवल में ID क्रिएट किया है, तो ब्रांच जब लॉगिन करके देखेंगे, दे कैन सी दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ योर्स. तब बैंक आपको कांटेक्ट करके आपसे जो भी ऑफलाइन में जितने भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, देन बैंक विल कॉल द प्रमोटर एंड चेक ऑल दोस डॉक्यूमेंट, एंड बैंक कैन सैंक्शन दिस थिंग ऑन द पोर्टल इटसेल्फ. कुछ एप्लीकेशन अगर बैंक ने पहले आपके सैंक्शन कर दिए हैं लेकिन उसको एग्री इंफ्रा फंड में इंक्लूड नहीं किए, दैट ऑल्सो अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो बैकडेट एंट्री भी कर सकते हैं बैंक. ऐसा नहीं कि आज के डेट, आज में मतलब सपोज पिछले 2 महीने पहले उन्होंने सैंक्शन किया है तो आज के डेट के में वो सैंक्शन नहीं करना देगा, ऐसा नहीं है. पोर्टल ऑल्सो गिव दैट फैसिलिटी. तो एक बार बैंक इसमें सैंक्शन कर ले पोर्टल पे,
सैंक्शन करने के बाद सब्सिक्वेंटली फिर जो भी डिसबर्समेंट होगा, डेट वाइज बैंक को डिसबर्समेंट डिटेल भरना पड़ता है, कौन से डेट में कितना डिसबर्समेंट हुआ। उसके बाद से आपको सब्सिडी के लिए कुछ करना नहीं है। ये बैंक जो है हर 3 महीने में मिनिस्ट्री को क्लेम सबमिट करेंगे। अभी फिलहाल ये प्रोसेस मैनुअल है, जो बैंक से जो क्लेम आते हैं हम लोग हर क्वार्टर में 3-3 महीने में इसको सेटल करते हैं। बट सब्सिक्वेंटली ये पोर्टल में भी ये डेवलप हो रहा है, ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होके ऑनलाइन में सारा कैलकुलेशन करके जो क्लेम बैंक भेजेंगे हम हर 3 महीने में बैंक को सेटल करेंगे। एंड बैंक फिर सब्सिक्वेंटली ये आपके सेविंग अकाउंट हो या लोन अकाउंट हो, दैट इज अप टू बैंक, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बोथ क्रेडिट गारंटी फी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन फी दोनों। So this is all about the scheme. If manage can go through the website, so we can show once, because I am not able to show here directly. But if you can show your screen, I can guide to show some features of the portal. Yes. जैसे आप देख रहे हैं कि ये है agriinfra.dac.gov.in, ये पीपीटी आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें ये है। इसमें आप देखेंगे अबाउट द स्कीम पे क्लिक कीजिए। एक बार या देखिए आप इसमें FAQ है। आपके मन में बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, इस तरह का प्रोजेक्ट एलिजिबल है कि नहीं है, क्या है। इसमें सारे तरह के क्वेश्चन के, आपके नॉर्मल क्वेश्चन के जवाब दिए गए हैं। एंड देन एलिजिबल प्रोजेक्ट पे एक बार क्लिक कीजिए, ऊपर सबसे ऊपर एलिजिबल प्रोजेक्ट जो है, इसमें हम लोगों ने जितने भी तरह के मेजर क्रॉप्स है इंडिया में, सारे क्रॉप्स के जो प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है जो एलिजिबल है अंडर स्कीम, एंड किस तरह के एक्टिविटीज जो एलिजिबल नहीं है, इसका लिस्ट करके रखें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस तरह की एक्टिविटी के लिए अप्लाई करें, किस तरह के लिए नहीं। हर तरह के क्रॉप के लिए इसमें डिटेल दिया गया है। क्लिक ऑन द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या हियर इंटरेस्ट रेट, क्लिक ऑन देखिए आप इसमें जितने भी तरह के बैंक हैं हमारे पास, इनके या इंटरेस्ट रेट, क्लिक ऑन द इंटरेस्ट रेट, और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, क्लिक ऑन इंटरेस्ट रेट प्लीज। या यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन का नाम है जिन्होंने भी हमारे साथ MOU, सारे तरह के DCCBs जो है, एंड STCB है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, और कमर्शियल बैंक है, इनका अभी का जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दिस इज नॉट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दिस इज द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर 3% का सबवेंशन है, राइट। अब एक बार बेनिफिशियरी पे क्लिक कीजिए, बेनिफिशियरी। Sorry, I have a question. This is 4+3 interest subvention. दिस इज जो DCCBs और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, अभी जो हमारे यहाँ पे कंडीशन है, ये लोग सिर्फ पैक्स को लोन दे सकते हैं अभी के जो कंडीशन है। तो पैक्स के लिए नाबार्ड का एक स्कीम है, पैक्स के लिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए, दैट इज पैक्स एज MSC स्कीम, जिसमें नाबार्ड 4% पे रिफाइनेंस करता है। तो 4% उनका अभी इंटरेस्ट रेट है। या क्लिक ऑन द बेनिफिशियरी, या रजिस्ट्रेशन पे जाइए। ये देखिए, जब आपको सब लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड देके, फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, फिर आप अप्लाई। बट सर इन केस ऑफ कंपनी आधार कार्ड तो होगा ही नहीं। आप अपने कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर होंगे, उनके आधार कार्ड के नंबर पे, आधार कार्ड इज मैंडेटरी, किसी भी एक पार्टनर के नाम पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं। ओके सर, जस्ट अ मिनट सर, ये इसमें जैसे हमारा FPO है, तो FPO के किसी BOD का आधार कार्ड हम इसमें दे सकते हैं? या यस, उसके आगे जब आप लोन एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे आपका FPO के बारे में पूछेंगे, आपके डिटेल FPO का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पूछेंगे। यहाँ पे बस आप अगर कोई एग्री एंटरप्रेन्योर अगर इसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके नाम हो गया प्लस उसके कंपनी या किसी डायरेक्टर का आधार कार्ड हम दे सकते हैं। जो नॉर्मल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं वो भी कंपनी उसमें ना पार्टिसिपेट कर सकते हो, बेनिफिशियरी बन सकते हैं, अदर देन FPO एज एन इंडिविजुअल। ये नॉर्मल कंपनी, सारे तरह के प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एलिजिबल है स्कीम। ओके, थैंक यू इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी। यस, डेफिनेटली। एक बार आप बेनिफिशियरी पे क्लिक कीजिए, और एक बार इसमें हम लोगों ने DPR टेम्पलेट आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये देखिए आपका डीपीआर का टेम्पलेट है, ये पूरा फिल इन द ब्लैंक टाइप है, आप उसको डाउनलोड करेंगे। आप चाहें तो इसको आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करके आप उसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं जिसमें आप वो कैलकुलेशन करके अपने हाथ से भी भर लेते हैं, तो दैट ऑल्सो वी एक्सेप्ट, हमें कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट देखिए एक बार, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट ये देखिए हम लोगों ने सारे बैंकों से डिस्कस किया कि उनको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए लोन सैंक्शन के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके अगर हैंडी होंगे, आपके पास ऑलरेडी होगा, आपने पोर्टल पे अप्लाई किया और बैंक के पास ये सारे डॉक्यूमेंट लेके गए अपने साथ में, तो आपका लोन सैंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, सो यू गो टू द बेनिफिशियरी वंस अगेन, मॉडल डीपीआर या कैटेगरी में सिलेक्ट कीजिए एक बार यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली अभी अपलोड नहीं हुआ है, आप एक बार रिसोर्सेज में क्लिक कीजिए, रिसोर्सेज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद साइड में रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज या एक बार और कैटेगरी में आप डीपीआर सिलेक्ट कीजिए, कैटेगरी में ऊपर जो कैटेगरी है या डीपीआर, या यस राइट, डीपीआर सैंपल। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें बहुत तरह के डीपीआर विद कैपिटल सब्सिडी, विदाउट कैपिटल सब्सिडी अपलोडेड है, सारे उसी फॉर्मेट में जो हमने टेम्पलेट दिखा है उसी फॉर्मेट में डीपीआर टेम्पलेट है, अलग अलग तरह के यूनिट का। उसमें एक बार डीपीआर सैंपल इसमें आप अपना डिटेल भर सकते हैं, और जो फाइनेंशियल टेबल्स है वो सारा आगे भरा हुआ है, अलग अलग कैपेसिटी के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो यहाँ पे डीपीआर सैंपल आपने सर्च किया था वहाँ पे एक बार अदर सिलेक्ट कीजिए, डीपीआर सैंपल में अदर, क्लिक ऑन दैट। ओके, ये सारे जो डीपीआर है इसके सारे एक्सेल शीट्स है, आप देख पाएंगे एक्सेल जो लिखा है ये सारे एक्सेल शीट्स हैं। आप जैसे डाउनलोड करेंगे इस एक्सेल शीट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप टेबल फाइनल कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस टेबल को आप वो डीपीआर के जो आपको सैंपल डीपीआर दिखा है उसमें पेस्ट करके आसानी से सबमिट कर पाएंगे। जो बेनिफिशियरी पे और पे क्लिक कीजिए, बेनिफिशियरी पे क्लिक कीजिए एक बार, या यहाँ पे देखिए लास्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी में है। अभी इसमें भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है, इसमें बहुत आसान शब्दों में इसमें समझाया गया है, वो हिंदी एंड इंग्लिश में, 2 वीडियोज है हिंदी में और इंग्लिश में, इसके साथ कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए वो आप खुद समझ के देख सकते हैं। मैडम माय नेम इज शक्ति। मैम मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ पे ना एफपीओज हैं, एफपीओज पे हम ना सीसीडीपी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें हमारे बैंक से हम एआईएफ ले रहे हैं बट कोलेटरल फ्री नहीं हो पा रहा वो लोन्स। अच्छा, उसके लिए आपको एसएफएससी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। एसएफएससी दिल्ली या एसएफएससी हरियाणा? एसएफएससी दिल्ली। ठीक है, तो वो भी 1 करोड़ तक का दे रहे हैं? वो 1 करोड़ तक का दे रहे हैं। हाँ, उसमें भी 2 करोड़ नहीं है सर? नहीं, अभी फिलहाल उसमें 2 करोड़ का नहीं है। अभी जो एफपीओ प्रमोशन फंड स्कीम आया है उसमें 2 करोड़ तक का लिमिट है, जिसको एक्चुअली नाबार्ड का जो सब्सिडरी है नाप संरक्षण इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुआ है, वो शायद और 2 महीने लग सकता है उसको फंक्शनल होने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल वो फंक्शनल नहीं है। एसएफएससी का जो लिमिट है इट इज अप टू 1 करोड़। ठीक है, बट हमने जब एसएफएससी को भी कांटेक्ट किया है तो उनको भी मतलब थोड़ा अपडेट नहीं है इस बारे में, हमें कोई मतलब पॉजिटिव आउटपुट निकल के नहीं आया है, और बैंक बिना मॉर्गेज के वो लैंड मॉर्गेज करवाना चाह रहा है, तो ये बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि एफपीओ प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं और लैंड है वो इंडिविजुअल लैंड है, तो ये बड़ा इशू रहता है। देखिए बैंक जो है चाहे एफपीओ हो नॉन एफपीओ का भी प्राइमरी मॉर्गेज तो हमेशा ही रखते हैं। नहीं, वो प्राइमरी मॉर्गेज अगर वो उसको प्रोजेक्ट्स को रखें जिसमें आपका ना रैपिंग चैम्बर हो गया, कोल्ड रूम हो गया, या ग्रेडिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको रखें तो कोई इशू ही नहीं आता, बट कोलेट्रल के लिए वो लैंड पे जा रहा है, तो लैंड फार्मर्स का आप भी समझ रहे होंगे अभी थोड़ा एजुटेशन चल रहा है, मतलब फार्मर लैंड का बड़ा स्पेसिफिक होके मनाही हो जा रहा है कि नहीं यार फार्मर लैंड को कोलेट्रल रखना नहीं जा रहे, तो इसका बड़ा मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ इसी वजह से रुके हुए हैं हरियाणा में। नहीं, हम समझ रहे हैं, एक्चुअली एफपीओ के लेवल में ये प्रॉब्लम काफ़ी है, हमें बहुत सारे एफपीओ ने फ्लैग किया भी है, और हम लोग कंटिन्यूसली एसएफएससी के टच में भी है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हम लोग एसएफएससी के साथ कंटिन्यूसली टच में हैं, यही मैं कह सकता हूँ फॉर टाइम बिंग। This is Rohit Dholi, sir, from IMR. I just want to know that
the logistic cost or working capital cost will be considered in the DPR in project? नहीं, देखिए ये सिर्फ टर्म लोन के लिए है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। वर्किंग कैपिटल के लिए स्कीम में एक्टिविटी एलिजिबल नहीं है। Okay, for vehicle, logistic vehicle consider होगा उसमें? लॉजिस्टिक व्हीकल कंसिडर होगा। पर सर जब मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जब लग जाता है तब फार्मर्स को थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्ड करने का जरूरत होता है जस्ट टू हाउ टू ऑपरेट द मशीन। तो कई बार मशीन सप्लायर जो ट्रेनिंग देते हैं वो कई बार पर्याप्त नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि एक एडिशनल जरूरत पड़ती है कई बार, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था। वो बहुत ही माइनर फीस होता है, माइनर कॉस्ट इम्प्लीकेशन होता है, वो अपने डीपीआर में इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। लेकिन अगर बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल है, जैसे कोई अगर मार्केटिंग एफपीओ है, मार्केटिंग कर रहा है, प्रोक्योरमेंट के लिए सारा कॉस्ट इसमें डाल देते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, वो हम प्रोहिबिट करते हैं, हम अलाउ नहीं करते। लेकिन ऐसे छोटे मोटे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, डीपीआर बना रहे हैं, दिस इज ओके। परफेक्ट, या Good afternoon, sir. My name is Shakti. I am speaking from ESAF, CBBO. Sir, actually the scheme is very good. So our concern is that can this scheme be linked with some agencies which can mentor FEOs? Because management is also here. For example, if you are establishing an infra for a banana processing, it has to be mentored by that area if there is any KVK or any research institution, agricultural institutions. If they can do the mentoring role, at least for the period of 3 to 4 years, because a large investment our government is also making, so it will not go waste, sir. So that's my humble request. Is there any possibility of mentoring, that if that aspects also joins with this scheme, then this scheme will be a most successful scheme, sir. That's my humble request, sir. See, this is Agri Infra Fund. This is only for interest subvention and credit guarantee. This mentoring thing and all that can be a part of आपके जो FPO promotion fund scheme है, उसका पार्ट हो सकता है। लेकिन एग्री इंफ्रा फंड इज ओनली फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी, और कुछ भी तरह के इसमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए डीपीआर बनाने के लिए या फिर कोई क्लस्टर स्टडी करने के लिए, इसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। बट या कोलैबोरेशन एंड ऑल दैट कैन बी डन थ्रू एफपीओ प्रमोशन फंड स्कीम। Okay, sir. So it's my just suggestion only, maybe in the policy level also, if it can be integrated with the mentoring aspect, it will be more successful, sir. That's my request, that's sir. We have noted it down. Thank you, sir. Thank you, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 1 करोड़ का लोन का ये सरकार का है, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ है कि 100 मेट्रिक टन का बना सकते हैं कि 1000 मेट्रिक टन का बना सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है क्या? कैपेसिटी में रेस्ट्रिक्शन है ना, तो लोन में रेस्ट्रिक्शन है। आप लोन चाहे 2 करोड़ से ज्यादा भी ले सकते हैं, कैपेसिटी का तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ जो आपका नहीं, इवन लोन का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। 2 करोड़ का जो हम बोल रहे हैं, आप चाहे 5 करोड़ का लोन ले सकते हैं, लेकिन स्कीम का बेनिफिट आपको 2 करोड़ तक का मिलेगा। दैट्स द ओनली थिंग। और सर ऐसा कुछ है कि ओनली प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ लोन मिल सकता है कि एफपीओ जो है सिर्फ प्रोक्योरमेंट करना चाहता है और उसको लोन लेके करना चाहता है, तो ऐसा कुछ मिल सकता है क्या? सिर्फ ओनली नहीं, मतलब वो फैसिलिटी नहीं। प्रोक्योरमेंट करके आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, पैक हाउस बनाना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्कीम है। लेकिन आप उसको कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो वर्किंग कैपिटल हो गया, वो एलिजिबल नहीं होगा। मैं जानना चाह रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमको जमीन लेनी है, और जो अगर हम लीज पे अगर जमीन लेते हैं एफपीओ वाले, तो उसके लिए कोई टेन्योर है कि कितने साल का मिनिमम लीज होना चाहिए उस जमीन के लिए? मिनिमम 15 इयर्स। यस, ओके। हाँ सर, मैं विजय मस्के महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। सर मेरी एफपीओ है पूर्णा केलना फार्मर प्रोड्यूसर नाम से। अभी जो एग्री इंफ्रा जो अपनी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर हम एफपीओ चेयरपर्सन कोई बैंक में जाता है सर, और जो डिटेल प्रोजेक्ट में वो सबमिट करने के बाद बैंक पे ऐसा कोई डिपेंड है क्या सर, वो लोन करना ही चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिपेंड का वो डॉक्यूमेंट पे डिपेंड है क्या प्रोजेक्ट पे डिपेंड है? बैंक के पास जब जाता है, बैंक अपने जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स के हिसाब से ही चलते हैं। बैंक को हम कुछ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसको क्यों रिजेक्ट करें। बैंक अपना रीजन दे के रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
बट ओनली थिंग इज दैट अगर किसी मतलब सपोज एफपीओ के बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं एंड किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप में रिजेक्ट हो रहे हैं, तब हम बैंक के रिव्यू करते रहते हैं, उनको पूछते हैं कि क्यों आप इतने सारे एफपीओस का रिजेक्ट कर रहे हैं, वो हम रिव्यू करते रहते हैं। बट इट इज एब्सोल्युटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, इसमें हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इनका एप्लीकेशन अप्रूव ही कीजिए। सर मेरा कृष्णमूर्ति फार्मर प्रोड्यूसर है और एएफ में मैंने एप्लीकेशन किया है, वो पीएमयू सैंक्शन हो गया है फिर भी। और बैंक में जब लोन हो गया है तो बैंक और कोलेटरल मांग रही है सर। अपना वेयरहाउस का प्रपोजल है सर 96 लाख का। क्या आपने एसएफएसी के कांटेक्ट किए एसएफएसी से? हाँ किया सर, किया मैंने कोशिश। बैंक वाले पहले यस बोले सर, बाद में फिर ना बोले। फिर अभी मेरा लोन सैंक्शन हो गया एसबीआई से 70 लाख का, लेकिन वो मॉर्गेज मांग रहे सर अभी। नहीं, मॉर्गेज के लिए जो उनका एसएफएसी का स्कीम है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है, वो लोग अपने क्रेडिट गारंटी देते हैं। वहां से आपका अगर क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी आपको नहीं मिलता तो बैंक मॉर्गेज तो मांगेगा ही, क्योंकि एग्री इंफ्रा फंड में मॉर्गेज कवर एफपीओ के लिए नहीं होता। एग्री इंफ्रा फंड क्योंकि एफपीओ के लिए एफपीओ प्रमोशन फंड है जो अभी एसएफएसी मैनेज कर रहा है। आप उनको एक बार कांटेक्ट कीजिए और उनके थ्रू में आप क्रेडिट गारंटी सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। सॉरी टू इंटरव्यू, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आ रही है, एफपीओस के साथ आ रही है, क्योंकि उनको कोलेटरल नहीं मिल पा रहा। ये मतलब थ्रू आउट आप किसी भी स्टेट से बात कर लीजिए, ये दिक्कत आ रही है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप प्लीज इस पे थोड़ा सा अपना इंटेक दें या फिर इसके बारे में कुछ देखिए। नहीं, ये प्रॉब्लम तो है, हम मान रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग काफ़ी दिन से एसएफएसी के साथ में है, उनका भी कुछ फंड रिलेटेड इशू है एंड प्लस नाबार्ड का भी जो नाब संरक्षण यूनिट है वो जितना जल्दी फंक्शनल हो जाए तो हम तुरंत इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें काम कर रहे हैं एक्चुअली। कांग्रेस मैं बताना चाहूंगा कि हम एसएफएसी का भी एक कोई वन ऑफिशियल इज कनेक्टेड इन द बीसी, ही कैन कमेंट व्हाट इज द करंट स्टेटस। I saw somebody is there from SFSC. Otherwise, again, once again, we will take up with the SFSC and we will give that current status through manage. Okay. Okay, sir. My name is Rujan. I just want to know if the FPOs are at initial stages, they don't have the audit reports. So they can apply for a smaller amount of loan, sir, by any chance, if the promoter is willing to show their collateral. See, under Agri Infra Fund, this credit guarantee support is not there for FPO. There is another organization, Small Farmer Agri Business Consortium, SFSC, जो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देते हैं FPO के लिए। तो आप एग्री इंफ्रा फंड में चाहे जितना भी छोटा अमाउंट हो, अगर वो टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, चाहे आप जितना भी नया फॉर्मेशन स्टेज पे हो, इसमें कोई हमारा इशू नहीं है। आप एग्री इंफ्रा फंड में अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद से जो भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है, इट विल बी वेरीफाइड बाय द बैंक। जो भी लैंडिंग इश्यूज को आप सबमिट करेंगे, वो आपका जो डिटेल्स है वो चेक करेंगे। देन दिस इज एट देयर डिस्क्रिप्शन वेदर दे आर गोइंग टू अप्रूव और रिजेक्ट। हम बस बैंक के साथ रिव्यू ये कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एफपीओ का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, हम बैंक के साथ रिव्यू कर सकते हैं। आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए हम बैंक के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते एज मिनिस्ट्री। सृजन, आपका सवाल शायद ये था that your FPO is a new FPO and you do not have a audited financial documents of your FPO. Is this was the question you had? Okay. So there is no issue. Banks also finance the greenfield projects. It is not necessary that you should have a past track record and you should be an operating. You may be an entity which has come into existence only recently, and you are, as an FPO, you are setting up some infrastructure group of farmers together, and the entity could be a society or it could be a private limited company, whatever be the structure of the FPO. Banks will consider there is no restriction as such from in the scheme guidelines, and banks also do finance. And when you are also prepared to give a collateral security, there should not be an issue. Okay, thank you very much, sir. Clarify. Yes, sir. Thank you, sir. ये सर इधर बैडगी बोल के एक गांव है सर, यहाँ पे चिल्ली, ग्रीन चिल्ली बहुत फेमस है।
तो उसके लिए हम लोग पैक हाउस प्लान कर रहे हैं। हमारे पास एक 3 एकड़ जमीन है सर, वो रोड का साइड में ही है, लेकिन वो 3 एकड़ जमीन अभी एग्रीकल्चर लैंड है। तो अभी वो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को कोलेट्रल में ये जमीन पूरा देना पड़ेगा सर। एक 50 लाख का प्रोजेक्ट पैक हाउस उधर इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। तो वो जमीन कैसा वैल्यूएशन होता है सर? अभी वो 50 लाख हम लोग डीपीआर बना के बैंक में लेके गया, बैंक सिबिल और आईटी रिटर्न ये सब कुछ, और बाद में ये 50 लाख का उसको कोलेट्रल मिलेगा क्या सर? ये 2-2.5 एकड़ हमारा पास जो रोड है, नेशनल हाईवे NH64, ये पुणे बेंगलुरु रोड ना सर, पीबी रोड बोलते हैं हम लोग, इसका साइड में ही जमीन नहीं है। या अब्दुल जी, मुझे आपका सवाल ये कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। आप बता रहे हैं कि आपके पास कुछ ये 3 एकड़ जमीन है जिसमें आप चिली प्रोसेसिंग का, ग्रीन चिली प्रोसेसिंग और पैक हाउस कुछ लगाना चाहते हैं। जी सर, तो पैक हाउस ये करने का आपका FPO है? ये FPO में है? सर FPO नहीं है, वी आर बाइंग फ्रॉम फार्मर्स। हमारा इधर APMC में लाइसेंस हम लोग थे, तो हम लोग you are an entrepreneur, you are an agri entrepreneur, you will be procuring from farmers and setting up this unit. तो ये तो बैंक का डिस्क्रिप्शन है, उसको आप CGTMSE के अंदर एग्री एंटरप्रेन्योर को कवरेज अवेलेबल है 2 करोड़ तक का विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन जब आप कोई प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कुछ आप सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसको प्रोसेसिंग के लिए कुछ मशीनरी लेंगे, तो इसके लिए अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो वो जो बिल्डिंग बनाएंगे या सिविल कंस्ट्रक्शन जो भी करेंगे, दैट विल बी सर्टेनली मॉर्गेज टू द बैंक, एंड वो खाली बिल्डिंग विदाउट लैंड तो मॉर्गेज नहीं होती है। तो बैंक विल सर्टेनली आस्क यू टू गिव द प्राइमरी सिक्योरिटी एज ए, जो उस पैसे से जो पैसा आपने लिया बैंक से फॉर क्रिएटिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो आपको मॉर्गेज करना ही पड़ेगा बैंक के पास। और कुछ मशीनरी है तो हाइपोथिकेशन करना पड़ेगा। और अदरवाइज अगर कोई सिविल कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो CGTMSE से कवरेज अवेलेबल है फॉर एन एग्री एंटरप्रेन्योर, और 2 करोड़ रुपए तक बैंक विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बैंक को अदर क्रेडेंशियल्स आपके चेक करने हैं वो करेगा सर। बैंक में सिबिल चेक करेगा, उन लोगों को मिनिमम 750 उन लोगों को सिबिल स्कोर चाहिए, और वो सब फॉर्मेलिटी वो करेगा। आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा सिविल स्कोर से वो, और बाकी आपकी जो आप उसको DPR बना के देंगे वो उसको बैंक शुड बी सेटिस्फाइड दैट दिस इज ए वायबल प्रोजेक्ट, यू विल बी एबल टू सर्विस द डेट, आल्सो जनरेट इनकम फॉर योरसेल्फ। सर लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों को ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सर, या वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इंक्लूड रहेगा? लैंड एंड बिल्डिंग DPR में वो कॉस्ट इंक्लूड रहेगा सर DPR में? हम लोग कुछ कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट तो आप नहीं ले सकते हैं, वो प्रोजेक्ट में बैंक्स नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना रिक्वायर्ड है तो वो कॉस्ट को वो इंक्लूड कर लेंगे, दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, बैंक्स कंसीडर करते हैं उसको। संजय जी, आपकी जानकारी के लिए मैंने सभी FPO की जानकारी के लिए कॉल सेंटर का नंबर चैट बॉक्स में शेयर किया है, और आई एम रिपीटिंग 011-2360-4888 011-2360-4888। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, आपके कोई इशू होगा तो वी कैन डिस्कस। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था, मैं गुजरात से NCDC की FPO हमने खोली है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो सर हमारा शुरू में अभी FPO रजिस्ट्रेशन जस्ट हो रहा है, और हमें होप है कि विद इन मंथ हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो हम सोच रहे थे फर्स्ट हम लोग 20-25 लाख का लोन ले इनसे IFS से, और फिर बाद में बड़ा थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट साइज बढ़ जाए तब हम 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का, तो वो मिल सकता है सेकंड टाइम भी? समझो ये फर्स्ट रिकवरी हो जाए रिटर्न, फिर सेकंड टाइम क्या आपके यहाँ इसी तरह से एक बार हो गया फिर दूसरी बार नहीं मिल सकता ऐसा है? नहीं, इनिशियल स्टेज में सर, हाँ इनिशियल स्टेज में सर हम कलेक्शन ग्रेडिंग करेंगे पल्सेस का स्मॉल स्केल पे, उसके लिए हमें 10 तो 15 लाख का अगर जरूर होता होगा 20 लाख, तो वो लोन लेकर हम लोग 2 साल बिजनेस करेंगे, और उसके बाद में 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बात करेंगे तो दूसरी बार में मिल सकता है? मिल सकता है, आप अप्लाई कीजिए। ओके ओके सर, ठीक। लेकिन एक ये बात ध्यान रखिए कि एक गांव में एक LGD कोड में आप 2 करोड़ तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बोलिए, आपका आवाज। नमस्ते सर, मैं द्वारका से बोल रहा हूँ, पोखा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। सर मेरा 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का, हमारा एफपीओ का 3 साल हो गया है और हम यहाँ पे एक लैंड भी लिया है 3 एकड़। इसमें हम ग्राउंड नट प्रोसेसन यूनिट अभी बनाने वाले हैं। तो आपका जो स्कीम है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो वही है कि इसका इंटरेस्ट रेट है ना, तो अलग अलग डिफरेंस है, मीन्स के डिफरेंस है इसमें। कोऑपरेटिव बैंक में 4% है और दूसरी बैंकों में 8.29% तक है। तो इतना डिफरेंस क्यों रहता है सर? ओके, ये देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सिर्फ पैक्स के लोन के जो देते हैं वही एलिजिबल है। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को जो लोन देते हैं एग्री इंफ्रा फंड में, सिर्फ वही एलिजिबल है। डीसीसीबी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अगर इंडिविजुअल्स को और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को देना चाहें तो एग्री इंफ्रा फंड में नहीं दे सकते फिलहाल, अभी के लिए। तो इसलिए जो वो लोग जो पैक्स को लोन देते हैं उसमें नाबार्ड का एक दूसरा स्कीम है, पैक्स एज एमएससी, जिसमें नाबार्ड 4% के रेट पे रीफाइनेंस करते हैं, इसीलिए वो 4% दिख रहा है आपको। लेकिन वो आप इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते डीसीसीबी और एसटीसीबी को, वो एलिजिबल नहीं होगा एग्री इंफ्रा फंड में। ओके, अगर वो एलिजिबल भी हो जाएंगे आगे चलकर, अगर हम अपने स्कीम से इन बैंकों को, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स को भी परमिट कर देंगे कि वो अदर देन बैंक्स को भी लेंडिंग कर सकें, तब भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में 4% नहीं रहेगा। वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि वही MCLR प्लस 100 बेसिस पॉइंट विद ए कैप ऑफ 9%। तो ये पैक्स एज एमएससी की वजह से उनको वो, क्योंकि नाबार्ड से उनको रीफाइनेंस मिलता है 4% पे, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल चार्ज करेंगे अदर देन पैक्स। जब वो हम उसको, अगर हम गोइंग फॉरवर्ड अगर वो सुविधा हम इन बैंकों को भी प्रदान कर देंगे कि अदर पैक्स के अलावा भी वो लैंडिंग कर सकें। ओके सर, तो हम अप्लाई करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी आप 7 दिन लिखा है, तो 7 दिन में आप रिस्पॉन्स दे देंगे कि ना सर? जैसे आपको बताया कि 24 से 48 घंटे में एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर किया, एप्लीकेशन को अपलोड किया पोर्टल में, तो वो हमें सेंट्रल PMU में दिखाई देगी। हम उसको 2 दिन के अंदर ही उसका डिस्पोजल कर देंगे और जो बैंक आपने चूज किया होगा उस बैंक के पास वो एप्लीकेशन चली जाएगी। वो उसको देख पाएगा कि सेंट्रल PMU से अप्रूव हो गया। फिर वहां जाकर आपको अपने कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, एप्लीकेशन उनकी भरना और जो भी उनकी जरूरत रहेगी कागजों की वो देकर बैंक सैंक्शन करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। For now, actually, we have received many such query from animal husbandry related issue like chilling and collection center and vehicle, etc. Right now, the decision is pending at higher authority level, at the level of policymaker, because there is a different scheme of animal husbandry infrastructure fund. They are also giving on the same line 3% interest subvention. So whether to cover under agri infra, same activity under agri infra fund or not, that is at on the table of some senior authority. Okay, thank you very much. Wonderful presentation, particularly on this AAF, and we are very much thankful to Meena Sab and Ashwini Mittal Sab and Navodita Aryaji. You make wonderful presentation on this, and you have clarified so many doubts of our delegates today's program.